سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک ایسے شرارتی نوجوان پر ہے جسے شرارت بہت مہنگی پڑ گئی۔ اسے علم ہی نہ ہوا کہ یہ حرکت اس کی جان لے جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا، جہاں جہاں نظر جاتی تھی ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ موت کا سناٹا ہر طرف طاری تھا۔ اس قبرستان کے درمیان دو نوجوان ایک قبر پر موجود تھے اور ان کے سامنے ہی ایک گورکن قبر کھودے جا رہا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں کی عمریں 20 سے 25 برس کے درمیان ہوں گی۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کا نام عاصم اور دوسرے کا نام مدثر تھا۔ یہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ عاصم کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کافی سوگوار نظر آ رہا تھا، مانو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کا محبوب ترین دوست ایک حادثے میں قتل ہو چکا تھا اور آج بعد نماز مغرب اس کا نماز جنازہ تھا۔ یاسر عاصم کا کزن تھا۔ دوستوں میں ہونے والی معمولی تلخ کلامی پر یاسر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل ہونے والے یاسر کی چند ہفتوں بعد شادی تھی، لیکن ایک معمولی سی رنجش اس کی جان لے گئی تھی۔ اس کے بوڑھے والدین پر مانو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ موت برحق ہے، مگر ایسی موت والدین کو جیتے جی ہی مار دیتی ہے۔ یاسر کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ اس کے گھر والے جہاں غم سے نڈھال تھے، وہیں عاصم بھی بہت اداس اور پریشان تھا۔ اس کے ساتھ موجود اس کا دوست مدثر فطرتاً شریر تھا۔ اس قبرستان میں بھی اسے بار بار مذاق ہی سوجھ رہا تھا۔ عاصم نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم یہاں بھی مذاق کرو۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ ہمارا دوست یاسر ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ پلیز یار مدثر، کچھ تو خیال کرو، تمہیں یہاں قبرستان میں بھی مذاق سوجھ رہا ہے۔ عاصم نے مدثر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر بلا مدثر پر کیا اثر ہونا تھا؟ وہ ہر تھوڑی دیر بعد ہی کوئی شریر سا جملہ ہانک دیتا تھا، جس پر عاصم اسے روک اور ٹوک رہا تھا۔ عاصم مدثر سے مخاطب ہوا اور بولا کہ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ آج ہمارے دوست کا قتل ہو گیا ہے اور بعد نماز مغرب اس کا جنازہ ہے؟ کم از کم کچھ تو خیال کرو۔ کیا تمہیں ان کے والدین کا بھی خیال نہیں، جن کو جیتے جی اپنے نوجوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہے؟ ایسی موت کا تصور تو انسان کو کانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جہاں خوشیاں چند قدم کے فاصلے پر ہوں، نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں ہوں، اور زندگی کے ہم سفر کی یاد دن رات انسان کے ساتھ ہو، جہاں والدین زندہ درگور ہو گئے ہوں۔ اے کاش کہ ہم وہاں موجود ہوتے تو اپنے دوست کو بچا لیتے۔ عاصم نے رونے والے لہجے میں مدثر کو یہ ساری باتیں کی تھیں۔ عاصم کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد مدثر اب تھوڑا سا سیریس ہو گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے قبرستان میں موجود تھے اور اپنے دوست کی قبر کھدوا رہے تھے۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میت کو دفنانا تھا۔ کتنا خوفناک ہوتا ہے قبرستان! زندہ انسان تو ایک پل بھی یہاں نہیں گزار سکتا۔ یہ لوگ یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ گورکن قبر سے باہر نکل آیا اور عاصم سے مخاطب ہوا، لو بچوں، قبر تیار ہے، جب میت آ جائے تو مجھے بلا لینا، میں ذرا اپنے جھوپڑے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا گورکن قبر سے نکلا اور اپنے جھوپڑے کی طرف چلا گیا۔ گورکن کے جانے کے بعد مدثر قبر کے پاس آیا اور اس کے اندر جھانکنے لگا۔ پتہ نہیں یار فرشتے حساب کیسے لیتے ہوں گے، میں تو سوچ سوچ کے ہی پاگل ہو رہا ہوں۔ مدثر نے پھر فضول کی ہاں کی۔ مدثر، فضول باتیں کرنا چھوڑو، عاصم نے ناگواری سے جواب دیا۔ جیسے جیسے مغرب قریب ہو رہی تھی، مدثر کو ایک انجانا سا خوف اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل پہ ٹیکسٹ میسج چیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ مدثر نے عاصم کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہوا، عاصم اگر ناراض نہ ہو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ عاصم نے مدثر کی طرف دیکھا
और बोला, हाँ जरूर कहो, क्या हुआ? मुदस्सिर ने कहा, मेरा मोबाइल कब्र के अंदर गिर गया है, क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? मुदस्सिर लापरवाही से बोला था। आसिम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हाथ देता हूं, तुम कब्र में उतरो और अपना मोबाइल उठा लो। मुदस्सिर का मोबाइल जरा कीमती था, तो उसने बिना सोचे समझे ही एकदम से कब्र के अंदर छलांग लगा दी और अपना मोबाइल उठा लिया। इसके बाद आसिम ने उसे हाथ दिया और कब्र से बाहर खींच लिया। मुदस्सिर जैसे ही कब्र से बाहर निकला, उसके जहन में एक शरारत सूझी। वो आसिम से मुखातिब हुआ, यार आसिम, मैं एक बात सोच रहा हूं, अगर हम मैयत के साथ अपना मोबाइल कब्र के अंदर रख दें तो क्या होगा? मुदस्सिर की ये फजूल बात सुनकर आसिम के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा नुमाया हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? भला इस सिचुएशन में तुम्हें अभी तक मजाक सूझ रहा है? इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। यार आसिम, अगर मैं मोबाइल को लेकर अंदर कब्र में लेट जाऊं और तुम ऊपर से बंद कर दो तो कैसा रहेगा? हम भी जरा मर के देखें कैसा लगता है। पता नहीं मुर्दों को सिग्नल भी आते होंगे या नहीं। मुदस्सिर ने खिलखिलाते हुए आसिम से मजाक की। आसिम ने मुदस्सिर की तरफ गुस्से से देखा और खामोश रहा। आसिम, यार तुम बोलते क्यों नहीं? चलो मुझे हाथ दो, मैं कब्र के अंदर उतरता हूं, आज ये तजर्बा भी करके देखूं। जैसे ही मैं कब्र में लेटूंगा तो तुम ऊपर से स्लेब रख देना। इधर आसिम मुदस्सिर की तरफ गुस्से से देखे जा रहा था। वो कुछ बिना बोले वहां खामोश खड़ा रहा, लेकिन मुदस्सिर बाज ना आया। वो कब्र में उतर गया। जब बहुत देर तक मुदस्सिर ना माना, आसिम मुदस्सिर से तंग होकर आखिरकार मान गया था। वो मुदस्सिर को सबक सिखाना चाहता था। वो सोच रहा था कि जैसे ही मुदस्सिर कब्र में लेटेगा और वो ऊपर से सलेपे रखेगा तो मुदस्सिर एकदम से डर के बाहर निकल आएगा। ये मजाक इतना खतरनाक होने जा रहा था कि शायद इन दोनों को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा था। और मुदस्सिर की फजूल बातों से तंग होकर उसने भी मुदस्सिर के साथ मजाक करना चाही। आसिम ने इस वक्त सीरियस होकर मुदस्सिर से आखिरी लहजे में कहा, मुदस्सिर प्लीज बाहर निकल आओ, बहुत हो गया मजाक, ये ना हो कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ये सुनकर मुदस्सिर बोला, अरे यार आसिम, तुम तो बिला वजह ही गुस्सा होते रहते हो। एडवेंचर क्या चीज होता है तुम्हें क्या मालूम? यार आसिम, कभी तो मेरी बात को समझा करो। जब तक जनाजा नहीं आता तब तक हम ये एडवेंचर कर लेते हैं। प्लीज आसिम, मेरी बात मान जाओ यार। देखो यार प्लीज, 5 मिनट की तो बात है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी शरारत नहीं करूंगा। कम से कम आज तो मेरा साथ दो। मैं अंदर से फील करना चाहता हूं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। यार मुदस्सिर, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कब्रिस्तान में कोई आ मौजूद हुआ तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी या कुछ भी बुरा हो सकता है। प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मुदस्सिर ना माना। मुदस्सिर कब्र में सीधा लेट गया तो आसिम ने एक स्लेब उठाकर उसके मुंह वाली साइड के ऊपर रख दी। इसके बाद उसने दूसरी फिर तीसरी स्लेब भी कब्र के ऊपर रख दी। जैसे ही आसिम ने कब्र के ऊपर तीसरी स्लेब रखी, तभी मुदस्सिर नीचे से बोला, अरे यार आसिम, तुम तो मुझे जिंदा ही दफना रहे हो। वो अब भी शरारती लहजे में बोला था। बस बहुत हो गया, मुदस्सिर बाहर निकलो। आसिम हतमी अंदाज में मुदस्सिर से मुखातिब हुआ था। यार मुदस्सिर, जिंदगी और मौत अल्लाह की दी हुई चीजें हैं, कम से कम कुछ तो ख्याल करो। हम इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं और तुम एक कब्र में लेट के उसका मजाक बना रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? ये ना हो कि हमें अल्लाह का कोई अजाब आ पकड़े। चलो शाबाश, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब शराफत से बाहर निकल आओ। आखिरी स्लेब रखते हुए आसिम के हाथ और पैर कांप रहे थे। वो मुदस्सिर की इस बेवकूफ़ी पे बहुत घबराया हुआ था। उसने ना चाहते हुए भी आखिरी स्लेब मुदस्सिर के ऊपर रख दी थी। सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है? आसिम मुदस्सिर से मुखातिब हुआ। मुदस्सिर जल्दी जवाब दो, नहीं तो मैं स्लेपें उठा लूंगा। आसिम ने डरते हुए हाथों से मुदस्सिर को मैसेज टाइप किया, मगर उसे किसी भी मैसेज का कोई जवाब न मिला। मुदस्सिर जवाब दो,
नहीं तो मैं स्लेपे उठा लूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, बस करो, अब मुझे डर लगने लगा है। आसिम ने लरजती हुई आवाज में पुकारा, लेकिन उसे मुदस्सिर का कोई भी जवाब ना आया। आसिम ने मुदस्सिर का नंबर डायल किया, लेकिन पहले तो नंबर बिजी की टून आई और उसके बाद ही मुदस्सिर का नंबर बंद हो गया। हद होती है यार, प्लीज बाहर निकलो, आज मैं वाकई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने तो नंबर ही बंद कर दिया। आसिम ने कब्र के ऊपर से ही मुदस्सिर को घूरा जैसे वो देख रहा हो। उसने अपना मोबाइल जेब में डाला और आगे बढ़ा। आसिम ने अपना सारा जोर लगा दिया, मगर स्लेप नहीं हिल रही थी। उफ, ये क्या हो रहा है? शायद घबराहट में या कहीं मिट्टी में फंस गई होगी, आसिम ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। वो बराबर सिल पे अपना जोर लगा रहा था, मगर स्लेप थी कि हटने का नाम ही न ले रही थी। उसने झिंझलाकर एक बार फिर कोशिश की, मगर नाकाम रहा। खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। ओ मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? ओ हाँ, गोरकन चाचा को बुलाकर लाता हूं। ये कहकर वो गोरकन की झोपड़ी की तरफ भागा, जो कब्रिस्तान के तकरीबन इख्तिताम पर थी। वो तेजी से भागता गया और कब्रें फांगता जा रहा था। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो रहा था। कहीं मुदस्सिर मर तो नहीं गया या उसका दम तो नहीं घुट गया। दिल ही दिल में यह खौफ आसिम की जान लिए जा रहा था, लेकिन वो जरा सा भी ना रुका और बराबर तेजी से भागता गया। वो इस वक्त गोरकन की झोंपड़े की जानिब भाग रहा था। रास्ते में न जाने कितने कांटे उसके पैरों में चुभे थे। उसको शायद इस बात का एहसास तक नहीं था। वो बस यही सोचता जा रहा था कि अगर मुदस्सिर को कुछ हो गया तो उसकी बात का यकीन कौन करेगा? सब यही कहेंगे कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को जिंदा दरगोर कर दिया। खौफ से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। गोरकन के झोंपड़े के पास पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाया, चाचा कहां हो तुम? आसिम ने चीखते हुए आवाज लगाई। जब उसे कोई जवाब ना आया तो वो कपड़ा हटाकर गोरकन के झोंपड़े के अंदर दाखिल हो गया। आसिम ने देखा कि उस वक्त गोरकन सो रहा था। उसने गोरकन का बाजू पकड़ा और जोर से हिलाया, चचा चचा आंखें खोलो, मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। आसिम ने तकरीबन रोते हुए गोरकन से कहा था। आसिम के जोर से हिलाने पे गोरकन हड़बड़ाकर उठ बैठा और वो दोनों तेजी से कब्र की जानिब भागे। और जब वो कब्र पर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। कहां है तुम्हारा दोस्त? गोरकन ने मतलाशी नजरों से इधर उधर देखते हुए आसिम से कहा। चचा मुदस्सिर कब्र के अंदर है, प्लीज ये स्लेपे हटाने में मेरी मदद करें। गोरकन बिल्कुल शशदर रह गया था, मगर उस वक्त उसने कोई सवाल ना किया और आसिम के साथ स्लेब हटाने में मदद करने लगा। उन दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन स्लेब को हटाने में नाकाम रहे। आसिम अब सही मानों में कांप गया था। उसका जिस्म लरज रहा था। ये क्या किया तुम लोगों ने? कहीं तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? गोरकन आसिम से मुखातिब हुआ, जबकि आसिम उसकी बात सुनकर जमीन पर बैठता चला गया। इसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने के काबिल नहीं रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक बेल बजी तो उसने जल्दी से जेब से अपना मोबाइल निकाला। एक उम्मीद, एक आस कि शायद ये कॉल मुदस्सिर की होगी। उसका दिल धड़क रहा था, मगर कॉल उसके बड़े भाई की थी। शाहिद भाई प्लीज जल्दी से कब्रिस्तान आ जाएं। आसिम ने कपकपाते हुए अपने भाई से सहमे हुए अंदाज में कहा। इसके बाद कॉल कट गई और आसिम अपना सर पकड़कर कब्र पर ही बैठ गया। थोड़ी ही देर में शाहिद भाई कब्रिस्तान पहुंच गए। गोरकन ने उन्हें सारी तफसील बताई। गोरकन की बातें सुनकर शाहिद भाई भी लरज उठे और अपने साथियों के साथ मिलकर कब्र के ऊपर से स्लेपे हटाने लगे। पता नहीं अब मुदस्सिर जिंदा भी है या नहीं। वो अपनी पूरी कुव्वत से जोर लगाकर सिलों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो और उनके 4 साथी उन स्लेपों को जरा सा भी ना हिला सके। आसिम बेहोश हो चुका था और इधर मैयत भी कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। आसिम को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और दूसरी कब्र खोदकर यासिर की तदफीन की गई। अब सबसे बड़ा मुश्किल मरला यह था कि मुदस्सिर के वालिदैन को यह वाकया कैसे समझाया जाए कि उनके अपने बेटे की ही जिद ने उसकी जान ले ली थी।
वो तो यही सोच रहे थे कि दोस्त ने ही अपने दोस्त को जिंदा दरगोर कर दिया था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। मुदस्सिर की गई शरारत उसके लिए जानलेवा साबित हुई थी। जब मुदस्सिर के वालिदैन को इस बात का पता चला तो उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें जरा भी मुदस्सिर के मरने का यकीन न था। हर किसी की जबान पर बस एक ही सवाल था कि मुदस्सिर को आखिर आसिम ने क्यों मारा। खैर, कई दिन तक कोशिशें होती रहीं, लेकिन मुदस्सिर की कब्र से सिले न हट सकी। बाहैसियत मुसलमान होने के हम सब का यही अकीदा और ईमान है कि मरने के बाद कब्र में हमसे सवाल जवाब होंगे। हमने अपनी जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, इसका नतीजा तो कब्र में ही मिलेगा। अपनी जिंदगी कब, कैसे और कहां गुजारी, इन तमाम बातों का हिसाब हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन मुदस्सिर ये भूल चुका था कि खुदा के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते। इस मजाक को खुदा ने उसके लिए हकीकत का रूप दे दिया था, जो बहुत ही भयानक निकला, और उसकी मौत सबके लिए इबरत का निशान बन गई। इस वाक़ये के बाद बहुत सारी कोशिशें की गई कि मुदस्सिर की कब्र कुशाई की जा सके, लेकिन यह मुमकिन ना हुआ। दोस्तों, कब्रिस्तान को इबरत की जगह माना जाता है, लेकिन मुदस्सिर इस बात से अनजान था। उसने जाने या अनजाने में अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ले ली थी, तभी उसका अंजाम भयानक हुआ। इस वाक़ये में क्या पुरअसरारियत थी या अल्लाह की कोई हिकमत थी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ऐसी बातों पर मजाक करने वालों का अंजाम और बहुत से सवाल जहन में जन्म लेते हैं, लेकिन मुदस्सिर की हुई बातें आज भी आसिम के जहन पर नक्श हैं। अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए और हमें भी कब्र के अजाब से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, हम ये कहानियां जो आपको सुना रहे हैं, ये बहुत सारे दोस्तों से भेजी गई होती हैं। इन कहानियों में कहां तक कोई सच्चाई है, ये तो अल्लाह पाक की जात ही बेहतर जानती है। कहानी सुनाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए आपसे एक्सक्यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।